ನಮಸ್ಕಾರ. A9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೀನ್ ಶೇಖ್. लेटंदो लेको 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 ऐका विजयपुर जिल्हा न्यायवादी संघದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಾವೀದ್ ಕೂಡ್ಗೆ ಸೈಯದ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಅವರ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಔಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾದ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. खत्म कर छोड़ो सर कहते हैं करो अच्छा रखो आप मिलो सर साहब हम एक डालो सर एक डाले आगे एक डालो शुक्रिया हां साहब को नहीं देंगे ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ वो मुंडे आ रही हाशु मोबाइल पे चलो कनेक्शन देना ले सर हाँ जोर से जरा बोलो जोर से हमें रनिंग ले रहा है या सामने से ओके सर ಔಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಮರ್ಯಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ಪುಕ್ಕಟೆ ಗಾಳಿ, ಪುಕ್ಕಟೆ ನೀರು, ಪುಕ್ಕಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ನರಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಜರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುವಿಧಾಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೆಲವು ಸುವಿಧಾಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ. ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಗುರುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ जैसा कि अभी एडिशनल एसपी साहब आपको मुबारकबाद पेश कर रहे थे, मैं भी डॉक्टर औटी साहब को और डॉक्टर फजल कादरी साहब को
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये दोनों हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह ताला इन अस्पतालों के ज़रिया मरीज़ों को शिफा अता फरमाए और ख़ास तौर पर जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने फरमाया कि एक खिदमत खल्क के जज्बे के तई यहाँ से एक काम होगा, इससे उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि ये दोनों अस्पतालों के ज़रिया गरीबों की भी मदद होगी, गरीब मरीजों की भी मदद होगी, उनका इलाज मुआवजा होगा। मैं फिर एक मरतबा दोनों डॉक्टर्स को, उनकी पूरे दोस्त अहबाब को, उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस इजलास को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಿಜಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಇವರ ಹಸ್ತ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ आशीर्वादी जय हिंद जय कर्नाटक। आज बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद रोड दरगाह हजरत कासिम कादरी अबुल हसन कादरी मस्जिद और कब्रस्तान की फरमाइशी जो वक्फ इंस्टीट्यूशन है, इस वक्फ इंस्टीट्यूशन में पहली बार बीजापुर जिले में ही पहली बार आप शायद बीजापुर जिले में देखे होंगे कि यूजुअली वक्फ प्रॉपर्टीज में कमर्शियल साइट्स, शादी महल, दुकान या ऐसे रेसिडेंशियल घर वगैरह बना करके ही इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट किया जाता था। मगर मैं ये दरगाह प्रमाइसिस का और ये वक्फ इंस्टीट्यूशन का बहैसियत सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन जावेद अख्तर मोइनुद्दीन कुडगी और हमारी पूरी टीम मिलाकर के, हमारी मैनेजमेंट कमेटी मिलाकर के एक डिसीजन करके ये जामिया मस्जिद जो पसमानदा एरिया है, जो गरीबों गुर्बत वाले लोगों का एरिया है, इस एरिया में एक गरीबों के और जरूरतमंदों के लिए एक डेंटल हॉस्पिटल और एक जनरल फिजिशियन हॉस्पिटल वक्फ की प्रोमाइसिस में वक्फ के कंट्रोल में चलाने के लिए हम एक नतीजे पर पहुंच करके यहाँ पर आज इस के डेंटल हॉस्पिटल का एक इनेकाद किए हैं और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मुश्ताक काउंटी का हम हॉस्पिटल का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें बीजापुर शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीर हाशमी साहब, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर और कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के न्यूली अपॉइंटेड मेंबर और एडिशनल एसपी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट श्री मारियाल सर और बीजापुर सब डिवीजन के डीवाईएसपी बसवराज अलगार साहब, मुसलमानों के हमारे बीजापुर सिटी के कायद अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब, बीजापुर सिटी के मेयर अब्दुल रजाक वर्ती साहब, मैजबीन वर्ती मोहतरमा के शोहर और माजी कारपोरेटर अब्दुल रजाक वर्ती साहब, डिप्टी मेयर दिनेश हल्ली, माइनॉरिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शकील बागमारे साहब, रजाक वर्ती साहब और दिनेश हल्ली, या कर्नाटक रक्षणा वेदी के सदर जनाब एमसी मुल्ला साहब, अप्पू पुजारी वार्ड नंबर 30 के कारपोरेटर, सद्दाम नाडेवाले वार्ड नंबर 23 के कारपोरेटर, इनके जेर निगरानी आज ये दो हॉस्पिटल, के डेंटल हॉस्पिटल जो दांतों का दवाखाना है और मुश्ताक काउंटी का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनरल फिजिशियन का यहाँ पर आज इनेकाद हुआ है। मैं सारे बीजापुर शहर के रहने बसने वालों से, गुरबाओं से ये मेरी रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपका सही इलाज और बेहतरीन इलाज कम से कम खर्चे में ये हॉस्पिटल्स में होगा और आप इसका भरपूर फायदा लीजिए। और वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज किए हैं और मैं स्पेशली मैं जेएम रोड के जामिया मस्जिद रोड के इलाके के हर रहने बसने वालों से गुजारिश करता हूं कि वो इस दवाखाने का इस्तेमाल अपने मरीजों के अच्छे इलाज के लिए करके एक तो वक्फ इंस्टीट्यूशन को लिफ्ट करें और दूसरी बात अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं।
कम से कम खर्चे में इलाज करवा करके। यही मेरी बोलने की रिक्वेस्ट है। और मैं तमाम न्यूज चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कार्य खैर में शामिल होकर के इसको वाइड पब्लिसिटी करके सारे बीजापुर शहर की अवाम को ये हॉस्पिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं SS कादरी, जनरल सेक्रेटरी कासिम कादरी दरगाह मैनेजमेंट कमेटी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जावेद कुडगी की तरफ से और हमारी पूरी बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आउटी स्पेशलिटी क्लिनिक और केडेंट डेंटल सेंटर का इनॉग्रेशन किया हम गच्ची महल पे। जितने भी मेहमान लोग आए आज हमारे इनॉग्रेशन के लिए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ ही साथ हमारे कासिम कादरी दरगाह के कमेटी चेयरमैन जावेद कुडगी और सेक्रेटरी सैयद आसिफुल्लाह कादरी EDGP साहब का, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि वक़्फ़ की जगह में हमको यहाँ पर क्लिनिक डालने के लिए एक जगह दिया और यहाँ के गरीब बस्तियों के लिए हेल्प होता बोल के उनके एक राय मशवरे से हमें यहाँ पर आज क्लिनिक स्टार्ट करे। क्लिनिक यहाँ पर स्टार्ट करने का मकसद यही है, यहाँ के हमारे जितने भी हकीम चौक से लेके जुमा मस्जिद तक पूरा जो हमारी स्लम बस्ती है, इन सबको सब पूरे यहाँ के लोग पूरा नॉर्मल क्लास के लोग आए। हमारे बड़े हॉस्पिटलों को जाने के लिए, बड़े हॉस्पिटलों को खर्चा उठाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। सब काम कर को रात को खाने वाले लोग आए इधर, इनके लिए यहाँ पर हमारे पास जो फैसिलिटीज है बच्चों का और बड़ों का और माइनर सर्जरीज, उसके अलावा जो क्रोनिक डिसीज रहते हैं उसके लिए कपिंग थेरेपी और पेन मैनेजमेंट के अंदर जो क्रोनिक पेन जो रहता ओल्ड एज में और जो यंग एज के अंदर जो आता उनके लिए कपिंग थेरेपी का भी हमारे पास सर्विस है। उसके साथ ही साथ बच्चों का खतना भी इधर होता है हमारे पास। इसके बाद साथ ही साथ हमारे पास और एक डॉक्टर फजल कादरी साहब, उनका एक डेंटल क्लिनिक भी ओपन हुआ। यहाँ पर जितने भी ओरल को लेको प्रॉब्लम्स होते हैं सबका इधर ट्रीटमेंट होता है। तो इधर हमारे इनॉग्रेशन को अभी तक जितने भी लोग आए, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम अर्ज करता हूँ मैं, हमारे तमाम मुसलमान कौम के सारे लोगों को, और नमस्कार मेरे सारे हिंदू भाइयों को। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह कादरी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ डेंटल फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री में। मैंने ग्रेजुएशन अलमीन से की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान से की। मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं इंडिया से हटके भी 2-3 कंट्रीज में, मैं फॉरेन कंट्रीज में सर्विस दे चुका हूँ। मैं प्रीवियस 2018 तक मैं नेपाल में रहा हूँ इन द बिगिनिंग, एक डेंटल कॉलेज में एज ए लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। फिर मैं गल्फ में भी रहा हूँ, 15 साल का मेरा गल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने 15 साल जो है ना ओमान में एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैंने कुछ वक्त सर्विस की है। फिर बाद में मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में भी मेरी एक एक्सपर्टी है। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इम्प्लांट्स और गम्स स्पेशलिटी। और गम्स के जो डिसीज हैं ये वेरी कॉमन है ये, और गम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से जो है ना, गम्स के बारे में कहा जाता है कि एक ये गम्स घर होते हैं दांत का। अगर गम्स अगर मजबूत नहीं है तो दांत मजबूत नहीं है। तो मेरी एक स्पेशलिटी जो है ना गम्स की, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी सर्जरी, उसकी हीलिंग से है। और दूसरी उसकी जो अटैच जो पार्ट है मेरे सब्जेक्ट की वो इम्प्लांट्स है, जो कि आज के दौर का जदीद एक ट्रीटमेंट है डेंटल का, जो कि एडेंचुलस जिसे हम कहते हैं कि जो जिनके मुंह में दांत नहीं है उनको एक प्रोविजन देता है वो खाने के लिए और उनकी हेल्थ के लिए।
अब एक ब्रीफ जो बेसिक जो डेंटिस्ट्री के बारे में जो मैं हमारी कौम से या हमारे शहर के लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि दांत नहीं तो सेहत नहीं। जो अंग्रेजी में कहा होता है नो टीथ नो हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी सेहत का जो दारोमदार है वो आपके खाने से है। और दूसरी चीज, अगर आप उस खाने को चबा के अगर नहीं खा पाते हैं, अगर उसको आप बाइट नहीं करते हैं, उस खाने को आप क्रश नहीं करते हैं, तो वो जो फूड के जो मिनरल्स और कैल्शियम्स और विटामिन जो एक्सट्रैक्ट करना है वो स्टमक नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये होती है, खाने को क्रश करके नहीं खाने से बहुत सारे सिस्टमिक डिसीज जो कि आपके जिस्मानी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और चेहरे की खूबसूरती है उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि दांत नहीं तो फिर गाल अंदर चले जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो दांत, अच्छी सेहत के लिए अच्छे दांत होना बेहद जरूरी है। और जो डेंटिस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर में, उसने इतना एडवांसमेंट आ गया है, जैसा कि इम्प्लांट्स आ गए हैं, अब क्राउनिंग हो गया है, ये तमाम चीजें जो है ना पेशेंट को एक लंबे टाइम तक जो है आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काफी ओल्ड एज तक भी इवन कि आप अपने हेल्दी टीथ और हेल्दी हेल्थ आप रख सकते हैं। तो मेरी जो अदर एस्पेक्ट है, जो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इंडिया में, बाहर में, सब चीजों में, क्योंकि मुझे तो इंडिया क्या है, मैं 2018 में इंडिया आया, उससे पहले मैं जहां भी सर्विस किया वो फॉरेन कंट्री में रहा मैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम के लिए, क्योंकि मेरा ये बर्थ प्लेस है जहां पे मेरी क्लिनिक है, ये इसी एरिया से मैंने अपनी स्कूलिंग की और मेरी कॉलेज की वगैरह सब जो चीज है, ये वाया लाइन जिसे कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है ये, यानी ये एरिया जो है ना उतना फाइनेंशियल जो है ना मेरे वक्त में लोगों के नेता, और आज के दौर में डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मेरी एक थॉट प्रोसेस थी कि मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मेरी अपनी सर्विसेज दूं बोल के। तो मेरी बड़ी आजीजाना गुजारिश है मेरे तमाम कौम के लोगों से और मेरे खास तौर से मेरे इलाके के लोगों से, आप मेरी सर्विसेज का और मेरे तजुर्बे का, मेरी एक्सपर्टी का और मेरी खिदमत आप लें मुझसे, और आप फिक्र ना करें जो रेस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं और जो शहर में जो महंगाई है डेंटल के ट्रीटमेंट को लेके जो खौफ है, आप उन चीजों से खौफ से दूर हो जाएं और इंशाल्लाह ताला मुझसे जो मेरे कौम के लिए हो सकती है तहे दिल से और बिल्कुल खुशी से और मेरे तमाम तजुर्बे से मैं अपनी कौम की, अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है और आप लोग सब मेरे लिए दुआ भी करें और मेरी मदद भी करें इंशाल्लाह ताला। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत। आओ सर, दोनों जने हो, आधे इधर आओ सर, तुम्हें भी हो तो आओ याकूब भाई, आओ जी, तुमने क्या शादी दूल्हे के बाजू तेरा करना पड़ रहा था। हमें रनिंग प्लेयर आए हैं। भाईजान माइक लो। बाकी हाथ थक जाते हैं। और मने और आओ बाजू में डेंटल वायर कर्नाटक में बारिश प्लांट उनके जमीन को हमें तुम्हारे मालिकपुर ठीक है हवलदार साहब रा ಇದು ಕೆ ಡೆಂಟಲ್